and welcome to the 13th lecture of our Laws of Motion discussion. In this lecture, we will discuss a very important topic called Atwood machine. But before starting this topic, I want to caution you. एक बहुत वैधानिक चेतावनी है, तो इसको समझिए. What happens is, often my students get in love with this topic. सबको मजा आने लगता है, पुली ब्लॉक सिस्टम बहुत आसानी से बनता है, सबको मजा आने लगता है. इनफैक्ट पूरा जो फिजिक्स होता है उसे भी मजा आने लगता है. बट द प्रॉब्लम इज आपके लिए तीनों सब्जेक्ट इक्वली इंपॉर्टेंट है. इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर IIT then 33% each topic is important. If you are preparing for NEET then 50% biology, 25% physics is important. So जो टॉपिक जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही समय दें. ऐसा नहीं कि सिर्फ फिजिक्स पढ़ रहे हैं दूसरा टॉपिक नहीं पढ़ना है. सो माई जॉब इज सिंपल टू एक्सप्लेन एवरीथिंग, to make you understand each and every concept so that you can solve each and every question. But remember, what is your purpose of watching this lecture? Your purpose of watching this lecture is not to be an expert in physics. I can bet you that after watching each lecture, the entire series of lectures, you can solve each and every question. But the purpose is not to be an expert in physics. Your purpose is to solve the questions which are going to be asked in your examination, competitive examination for IIT, and if you are preparing for NEET, then for NEET. So what matters is you have to solve the questions from those books which are relevant or prescribed for your particular examination. So if you are preparing for JEE Advanced, you have to solve a book in which it is written that this book is important for JEE Advanced. If you are preparing for NEET, then it should be written in the book that it is prescribed for NEET examination. Yes, by attending these lectures, you can solve the doubts of your friend. You can teach your fellow aspirant. But that is not the purpose. The purpose for your preparation is to solve the questions which are given to you, the homeworks which are given to you, the seats, the package, and the prescribed book. Three famous books, HCV, DC Pandey, and Singh. So don't get derailed that let's solve all the questions of laws of motion only. सारी बुक बनाना शुरू कर दिए, इसी में टाइम इन्वेस्ट कर दिए और केमिस्ट्री और मैथ्स और बायोलॉजी को छोड़ दिए. ऐसा नहीं करना है, ये बात ध्यान में रखना है. बिकॉज दिस टॉपिक इज लिटरली वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इजी. सब लोग को आसान लगता है, तुरंत आंसर आता है, सो कॉन्फिडेंस भी बहुत ज़्यादा आ जाता है. सो इन बातों का ध्यान रखना है. सो लेट्स बिगिन आवर डिस्कशन, एंड टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज एटवुड मशीन. नाउ व्हाट इज एटवुड मशीन? Atwood machine is the simplest pulley block system. It is the simplest pulley block system. Now I am using this word Atwood machine. This is often written in several books. बहुत सारे बुक में लिखा भी रहता है, बहुत सारे बुक में नहीं लिखा रहता है. इसलिए लोगों को नहीं पता होता है कि simplest pulley block system को हम लोग Atwood machine कहते हैं. And क्योंकि नहीं पता होता है इसलिए बहुत लोग गलती करते हैं. And the mistake they used to do is कि क्वेश्चन में डायरेक्टली कभी पूछ देता है फाइंड द एक्सलेशन फॉर ब्लॉक इन एटवुड मशीन. वंस इन 2013 देयर वाज एन एग्जाम SCRA, स्पेशल क्लास रेलवे अप्रेंटिस एग्जामिनेशन conducted by UPSC. In those examinations 42 students out of entire candidate from all over the India were selected. They were taught the mechanical engineering from BIT Misra free of cost. The entire fee, the cost for living, food, everything was free. And those 42 candidates were taught mechanical engineering, and after getting the 4-year degree, they were directly inducted in Indian Railway. So in that examination, once they asked, find the acceleration of block in Atwood machine. And those year, many of the candidates were aware that what is the acceleration of simplest pulley block system. But they were not aware that this system is also called Atwood machine. सबको पता था कि सिंपलेस्ट पुली ब्लॉक सिस्टम में एक्सलेशन कैसे निकालते हैं, कितना होता है, बट उनको यही नहीं पता था कि इसी को एटवुड मशीन कहते हैं. दिस वर्ड वाज न्यू टू देम. तो ऐसा नहीं होना चाहिए, हर न्यू वर्ड आपको पता होना चाहिए. सो द एटवुड मशीन इज द सिंपलेस्ट पुली ब्लॉक सिस्टम एंड दिस इज द सिस्टम. ये सीलिंग, इसके साथ ये पुली लगा हुआ है और इस पुली के साथ 2 ब्लॉक कनेक्टेड है. ये पहला ब्लॉक, इसका मास m1 है और ये दूसरा ब्लॉक, इसका मास m2 है. In the last lecture we had discussed
that if these two blocks are of equal mass, अगर ये दोनों ब्लॉक इक्वल मास के हैं, then the system will remain at rest. But let's suppose m1 is greater than m2. मान लेते हैं ये ब्लॉक का मास ज्यादा है और इस ब्लॉक का मास कम है, then what will happen? ये ब्लॉक नीचे की तरफ एक्सलेट करेगा और जितना ये ब्लॉक नीचे जाएगा उतना ही ये ब्लॉक ऊपर जाएगा, बिकॉज दे आर कनेक्टेड विद सेम स्ट्रिंग. तो जितना ये ब्लॉक ऊपर जाएगा उतना ही ये ब्लॉक नीचे जाएगा. सो दिस इज द एक्सलेशन ऑफ पुली ब्लॉक सिस्टम, द एक्सलेशन ऑफ ब्लॉक्स इन एटवुड मशीन, एंड वी हैव टू कैलकुलेट दिस एक्सलेशन. ये एक्सलेशन निकालना है. दो मेथड से हम लोग कैलकुलेट करेंगे, एक जो बेसिक तरीका होता है उससे, एंड दूसरा ट्रिक से. और उस ट्रिक को हम लोग याद रखेंगे ताकि वेरियस क्वेश्चंस जो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो क्वेश्चंस आप आसानी से उस ट्रिक से सॉल्व कर सकें. इस सिस्टम का एक वीडियो बनाइए. दुनिया में 3 फोर्स हम लोग पढ़े हैं, एक तो mg, एक तो नॉर्मल और एक तो टेंशन. तो इसका वेट m1g नीचे लगेगा, नॉर्मल लगेगा नहीं क्योंकि इसका किसी से कांटेक्ट नहीं है किसी सरफेस से. यहां पर टेंशन t ऊपर लगेगा. अब देखिए ये सेम स्ट्रिंग है और मैंने आपको बताया था कि क्योंकि हमारा जो पुली होता है वो फ्रिक्शन लेस होता है, दैट्स व्हाई द टेंशन इन द स्ट्रिंग रिमेन्स सेम. सेम स्ट्रिंग में टेंशन सेम रहेगा, यहां पर भी टेंशन T कहेंगे. इसका वेट m2g नीचे. ठीक है, FBD कंप्लीट हो गया. चलिए इक्वेशन लिखते हैं. ये ब्लॉक किधर मूव कर रहा है? नीचे. ब्लॉक जिधर मूव करता है उधर वाले फोर्स को पहले लिखते हैं. ये ब्लॉक नीचे मूव कर रहा है तो इस वाले फोर्स को पहले लिखेंगे m1g माइनस t, उसके अपोजिट वाले को नेगेटिव में. ब्लॉक जिधर मूव कर रहा है उधर वाले फोर्स को पहले, उसके अपोजिट वाले फोर्स को नेगेटिव में. ये हो गया नेट फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सलेशन m1 इनटू a. दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन. सिमिलरली इसके लिए इक्वेशन लिखिए. ये ब्लॉक ऊपर एक्सलेट कर रहा है तो पहले ये वाला फोर्स लिखेंगे t माइनस m2g is equals to m2a. This is our second equation. दोनों को ऐड कर दीजिए तो ये माइनस टी प्लस टी कैंसिल आउट हो जाएगा. m1g माइनस m2g, so this will be m1 माइनस m2 into g, and इनको ऐड करेंगे तो m1 plus m2 into a. So from here we can calculate a. a कितना हो जाएगा? m1 माइनस m2 into g by m1 plus m2. So this is the formula for acceleration of blocks in Atwood machine. अब देखिए एक गलती होता है, उस स्टेटमेंट को मैं लिख रहा हूं. If I will ask you a statement or if I will give you a statement or following statements in the question that with respect to Atwood machine, choose which of the following is correct. And the first statement is the acceleration of blocks in Atwood machine is same. सही होगा कि गलत होगा? अगर मैं कहूं कि एक्सलेशन ऑफ ब्लॉक्स एटवुड मशीन में सेम होता है, ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग. हाउ? इन दोनों ब्लॉक का एक्सलेशन सेम नहीं है. इन दोनों ब्लॉक का एक्सलेशन सेम नहीं है. इसका एक्सलेशन कितना है? a j कैप. इसका एक्सलेशन कितना है? a माइनस j. एक्सलेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी. सो the acceleration of two blocks in Atwood machine, just wait for 1 minute. So the acceleration of two blocks in Atwood machine are equal in magnitude. मैग्नीट्यूड में इक्वल है, बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन. सो अगर एक्सलेशन पूछे तो सेम नहीं कहेंगे, लेकिन एक्सलेशन का मैग्नीट्यूड सेम कहेंगे. ऑब्वियसली बात है. ये एक्सलेशन क्या लिखेंगे? ए जे कैप. ये एक्सलेशन क्या लिखेंगे? ए माइनस जे कैप. तो दोनों सेम तो नहीं है, अलग अलग है, अपोजिट है, मैग्नीट्यूड सेम है. So the statement is the magnitude of accelerations of the block in Atwood machine is same. तो कहेंगे yes, that is correct. Okay, so this is the formula for acceleration. If I will ask you what is the tension developed in this string, tension कितना होगा?
तो आप किसी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए, ए का वैल्यू टी निकल जाएगा। हम लोग इसमें पुट कर देते हैं। सो फ्रॉम इक्वेशन टू से देखिए टी की वैल्यू क्या लिखेंगे, इस माइनस m2g को उधर भेज दीजिए तो प्लस m2g हो जाएगा, m2 कॉमन ले लीजिए तो a प्लस जी। m2 a की वैल्यू पता है, देखिए m1 माइनस m2 इंटू जी बाय m1 प्लस m2, ये है a की वैल्यू और प्लस जी। आप g को भी कॉमन ले लीजिए, ये बचा m1 माइनस m2 बाय m1 प्लस m2 प्लस 1, तो उसको एलसीएम के लिए मैं इसको इधर भेज दे रहा हूँ m1 प्लस m2 बाय होल बाय m1 प्लस m2। तो देखिए माइनस m2 प्लस m2 कैंसिल आउट, m1 प्लस m1 2m1, तो टेंशन हो जाएगा 2m1 m2 g बाय m1 प्लस m2। सो दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट टेंशन। This is how you can calculate acceleration and this is how you can calculate tension. But this entire derivation of Atwood machine or simplest pulley block system is important for your school examination. अगर स्कूल में ये क्वेश्चन आया था कि ये देखिए एक पुली ब्लॉक सिस्टम है, इसका एक्सेलरेशन और टेंशन डिराइव कीजिए, then you will derive it like this. लेकिन अगर हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा और कैसे आएगा वो भी हम लोग देखेंगे, तब हम लोग इतना नहीं करेंगे, हम लोग एक लाइन में आंसर लिखेंगे। We can directly write acceleration. एक्सलेशन को हम लोग डायरेक्ट एक लाइन में लिख सकते हैं, निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? We will only draw mg. हम लोग टेंशन नहीं बनाएंगे, सिर्फ mg दिखाएंगे। टेंशन नहीं दिखाए, खाली mg दिखा लिए और देख लिए कौन सा मास ज्यादा है। अगर ये वाला मास ज्यादा है इससे, तो ये ब्लॉक नीचे जाएगा, ये वाला ब्लॉक ऊपर जाएगा। एक्सलेशन दिखा देंगे, सो mg दिखा लेंगे, एक्सलेशन दिखा लेंगे। वह mg मतलब वह फोर्स जो एक्सलेशन के डायरेक्शन में हो उसको सपोर्टिंग कहेंगे। सो इस m1g को देखो एक्सलेशन के डायरेक्शन में है ना, इसको सपोर्टिंग कहेंगे। दिस फोर्स विल बी नोन एज सपोर्टिंग फोर्स। और वह mg जो एक्सलेशन के अपोजिट है, देखिए ये mg नीचे लग रहा है, एक्सलेशन ऊपर है, इसको हम लोग अपोजिंग कहेंगे, इसको हम लोग अपोजिंग कहेंगे। हम लोग जानते हैं एक्सलेशन क्या होता है, नेट फोर्स बाय मास। सो एक्सलेशन इज इक्वल्स टू नेट फोर्स। नेट फोर्स क्या लिखेंगे, सपोर्टिंग माइनस अपोजिंग। सो दिस माइनस दिस, m1g माइनस m2g, देखिए ये लिखा हुआ है, डिवाइडेड बाय टोटल मास m1 प्लस m2, एंड दैट विल बी ऑल। एक्सलेशन निकल जाएगा और एक का एक्सलेशन निकल जाएगा तो एक के लिए इक्वेशन लिख देंगे, उसका टेंशन निकल जाएगा। अब मैं निकाल के दिखाता हूं कुछ एग्जांपल से, तो आपको समझ में आएगा कि इस ट्रिक का क्या यूज है। पहले इसको लिखिए फिर आगे बढ़ते हैं। सो अभी जो मैं क्वेश्चंस लिखूंगा, इन सारे क्वेश्चंस में आपको एक्सलेशन ऑफ ब्लॉक्स निकालना है और टेंशन इन स्ट्रिंग निकालना है। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, मैं एक सिंपल सा एटवुड मशीन ले लेता हूं। ये देखिए पुली और इसके साथ दो ब्लॉक बंधा हुआ है। एक ब्लॉक मान लेते हैं 5 kg का और दूसरा ब्लॉक इस तरह से 2 kg का। अच्छा एक बात मुझे और बताना है, पिछले क्लास की कॉपी से मुझे कुछ गलतियां मिली आप लोगों की, पहले वो गलती बता देता हूं। कुछ लोग कैसे बना रहे हो, ये धागा को ऐसे बना रहे हो, ये ऐसे बना रहे हो, फिर ऐसे पुली दिखा दिए, फिर ये धागा ऐसे है। नहीं भाई, तब टेंशन ये ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, ये टेंशन नीचे हो जाएगा, ये 2t इसके बराबर नहीं होगा, तब इसका कंपोनेंट लेना पड़ेगा। इसलिए ये धागा सब बिल्कुल सीधा सीधा होना चाहिए। ऐसे बना रहे हैं सब लोग, ये गलत है, इसको सुधारिएगा। तो ये दूसरा ब्लॉक है एंड लेट्स सपोज इसका मास 3 kg। सो व्हाट विल डू, विल जस्ट ड्रॉ mg, सिर्फ mg दिखाएंगे। ये 5 kg का वेट नीचे लगेगा कितना, 50 न्यूटन, और इसका वेट 3 kg का नीचे लगेगा 30 न्यूटन। अब ऑब्वियस सी बात है, ये फोर्स ज्यादा है, ये फोर्स कम है, तो ये सिस्टम नीचे जाएगा ए से, ये ब्लॉक, और ये ब्लॉक ऊपर जाएगा ए से। ये फोर्स एक्सलेशन किसमें है, डायरेक्शन में है, दैट्स व्हाई दिस फोर्स इज नोन एज सपोर्टिंग फोर्स, और इसको क्या बोलेंगे, अपोजिंग फोर्स, क्योंकि एक्सलेशन के अपोजिट है। और एक्सलेशन लिखेंगे सपोर्टिंग माइनस अपोजिंग, 20 बाय टोटल मास 5 3 8, ठीक है। तो 4 5 20, 4 दूनी 8, 5/2 मीटर पर सेकंड। सो एक्सलेशन विद इन 1 लाइन।
और अगर टेंशन निकालना हो तो आप किसी एक का एफबीडी बना दीजिए, सिर्फ इसका, मान लीजिए टेंशन टी है। सिर्फ इस ब्लॉक के लिए इक्वेशन लिखिए, ये ब्लॉक ऊपर जा रहा है तो ऊपर की तरफ वाले फोर्स को पहले लिखेंगे, T माइनस 30 इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सलेशन 3 इंटू ए, और 3 इंटू ए करेंगे तो 15/2, तो T हो जाएगा 75/2 न्यूटन। ये हम लोग का टेंशन है। इस तरह से एक लाइन में सवाल कर सकते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन से मुझे कपिल पाजी याद आते हैं, 1983 कैप्टन ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम, जब इंडियन क्रिकेट टीम फर्स्ट टाइम वर्ल्ड कप जीती थी। तो कपिल पाजी को अगर आप कभी कमेंट्री करते हुए देखते होंगे और कोई बल्लेबाज अगर खराब खेल रहा है या कोई खराब शॉट खेला, तो वो कहते हैं कि ऐसा तो नहीं कह सकते कि ये बल्लेबाज बहुत खराब खेल रहे हैं, लेकिन ऐसा जरूर कह सकते हैं कि वो बहुत बुरा खेल रहे हैं। ठीक है, सो ऐसे उनका लैंग्वेज होता है बोलने का। तो वैसा ही कुछ मुझे भी याद आता है कि ऐसा तो नहीं कह सकते कि ये एटवुड मशीन जैसा है, सॉरी ऐसा तो नहीं कह सकते कि ये एटवुड मशीन है, लेकिन ये एटवुड मशीन जैसा ही है। ये एक एटवुड मशीन जैसा ही है, कॉन्सेप्ट एटवुड मशीन जैसा ही रहेगा। कैसे लगाएंगे देखिए, इसका वेट 50 न्यूटन नीचे दिखाएंगे, इसका वेट 30 न्यूटन नीचे दिखाएंगे, और इसका वेट 40 न्यूटन नीचे दिखाएंगे। अब ये सिस्टम किधर जाएगा, तो 40 + 30 70, इधर साइड 70 है, इधर साइड 50 है, मतलब इधर साइड वेट ज्यादा है, तो ये सिस्टम नीचे जाएगा। ये ब्लॉक भी ए से नीचे जाएगा, सेम धागा से कनेक्टेड है इसलिए ये ब्लॉक भी ए से नीचे जाएगा, और ये दो सेम से कनेक्टेड है इसलिए अगर ये ब्लॉक ए से नीचे जा रहा है तो ये ब्लॉक ऊपर जाएगा ए से। क्लियर? और ए हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं। देखिए ये सपोर्टिंग फोर्स है क्योंकि देखिए एक्सलेशन के डायरेक्शन में, दोनों का एरो देखिए नीचे, ये भी सपोर्टिंग है, ये अपोजिंग है क्योंकि एक्सलेशन के अपोजिट है। तो सपोर्टिंग हो गया 30 + 40 70, माइनस अपोजिंग हो गया 50, मतलब टोटल हो गया 20 बाय मास, 3 + 4 7/5 12, तो 4 × 5 = 20, 4 × 3 = 12, 5/3 मीटर/सेकंड स्क्वायर। सो दिस इज द एक्सलेशन। अगर आपसे पूछे टेंशन कितना होगा, तो देखिए यहाँ दो स्ट्रिंग है, एक ये वाला स्ट्रिंग, इसमें टेंशन एक होगा, और दूसरा ये वाला स्ट्रिंग, तो दो टेंशन होंगे, अलग अलग स्ट्रिंग में टेंशन अलग अलग होता है। अगर मैं इस स्ट्रिंग में टेंशन निकालना चाहूं तो यहाँ पे आप टेंशन मान लो T1। टेंशन कैसे लगता है, ब्लॉक से दूर धागे की तरफ। अब इस ब्लॉक के लिए इक्वेशन लिखिए, ये ब्लॉक किधर जा रहा है ऊपर, तो क्या इक्वेशन लिखेंगे, T1 - 50 = मास इंटू एक्सलेशन 5 इंटू ए, और ये कितना है 5 5 5 25/3, तो ये T1 हो जाएगा 50, 53 × 120 150, तो 175/3, ये T1 हो जाएगा। अगर आपको इस धागे में टेंशन निकालना है तो यहाँ पे मान लीजिए T2 ऊपर, इस धागे इस ब्लॉक के लिए इक्वेशन लिखिए, नीचे जा रहा है ये ब्लॉक, क्या लिखेंगे 40 - T2 = मास इंटू एक्सलेशन 4a, तो ये हो गया 20/3, T2 हो जाएगा, इसको उधर भेज देंगे तो 4 120 - 100/3 100/3 न्यूटन, ये T2 हो जाएगा। अगर आप में से कोई ये चाहे कि सर इस ब्लॉक का एफबीडी बना के नहीं निकाल सकते, क्या निकाल सकते हैं, लेकिन इस ब्लॉक का एफबीडी पहले शुरुआत में नहीं बना सकते, क्योंकि शुरुआत में बनाओगे तो यहां पे टेंशन ये वाले स्ट्रिंग का T1 लगेगा और यहां पे टेंशन T2 लगेगा। तो अगर दोनों अननोन है तब तो नहीं निकाल सकते, लेकिन हाँ अगर एक नोन हो गया, मान लीजिए आपने T1 पहले निकाल दिया था 175/3, अब आपको T2 निकालना था, तो आप इसके बदले इसका भी बनाते तो भी आंसर आता। देखिए मैं इसका बना के निकाल के दिखा रहा हूं। T1 हम लोग लिख दिए क्योंकि नोन था, अब T2 निकालना है। ये ब्लॉक किधर जा रहा है नीचे, तो नीचे वाले फोर्स को पहले लिखिए, कितना है T2 + 30, T2 + 30 = -175/3, ब्लॉक जिधर जाता है उधर वाले फोर्स को पहले लिखते हैं, ये वाला अपोजिट, = मास इंटू एक्सलेशन 3 इंटू ए, ये हो गया 5, तो T2 हो जाएगा 175/3 - 25, तो 25 × 75, 175 - 75 100/3। तो आप इससे भी चाहते तो आंसर
यही आता। अगला सवाल चलते हैं, थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में देखिए, ये हम लोग के पास एक टेबल है, ये एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक का मास 5 kg है, ये एक पुली, इसके मदद से ये 5 kg का ब्लॉक बना हुआ है। नाउ सी, ये सिस्टम रुका हुआ नहीं रहेगा। ये सिस्टम और इस सिस्टम में फर्क है। इधर में आप कोई भी मास लगाओगे तो ये सिस्टम चलने लगेगा, क्योंकि इसको रोकने वाला कोई नहीं है। mg अब रोकेगा नहीं इसको। व्हाई? क्योंकि देखिए, अब mg इधर लेगा नीचे, और ये सरफेस इस पे नॉर्मल भी तो लगाएगा, वो दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर लेगा। और इस ब्लॉक का मोशन किधर होगा? इधर की तरफ। तो मोशन तो इधर होगा, ये ब्लॉक नीचे जाएगा, ये ब्लॉक इधर जाएगा। इधर की तरफ तो mg लग ही नहीं रहा है, हॉरिजॉन्टल में mg थोड़ी लगता है। हॉरिजॉन्टल में तो इस धागे का टेंशन लगेगा जो इसको चलाएगा। तो इधर में 1 kg रखो, 2 kg रखो, 4 kg रखो, 5 kg रखो, 10 kg रखो, कुछ भी रखो, ये सिस्टम चलेगा। कितने एक्सेशंस चलेगा? तो इसका वेट मान लीजिए 50, मान क्या लेंगे, 50 न्यूटन लगेगा ही, वेट ही खाली दिखाएंगे। इसका वेट नहीं दिखाएंगे। क्यों नहीं दिखाएंगे? क्योंकि इसका जो वेट है उसको नॉर्मल बैलेंस कर लिया। दूसरा, इसका वेट मोशन के डायरेक्शन में नहीं है, या मोशन के अपोजिट नहीं है, इसलिए नहीं दिखाएंगे। इसका एक्सेलेरेशन a, इसका भी एक्सेलेरेशन a। एक्सेलेरेशन क्या होता है? सपोर्टिंग फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स। ये फोर्स सपोर्टिंग है क्या अपोजिंग? सपोर्टिंग। एक्सेलेरेशन के डायरेक्शन में है। अपोजिंग फोर्स यहाँ पे कोई है ही नहीं, तो ये हो गया बस सपोर्टिंग फोर्स 50 बाय मास 5 + 5 10, 5 मीटर/सेकंड। दिस इज द एक्सेलेरेशन। अगर टेंशन निकालना हो तो आप यहाँ टेंशन T मान सकते हैं। इस ब्लॉक के लिए इक्वेशन लिखिए, 50 - T = 5 है, मतलब 25, तो T = 25 न्यूटन। आप इसके लिए भी चाहते हैं तो टेंशन लिख सकते थे, इसके लिए टेंशन T मान लिए। अब इस ब्लॉक के लिए इक्वेशन लिखिए, ये ब्लॉक इधर जा रहा है, तो T = 5 है, 25 न्यूटन। ठीक है, इसको लिखिए, फिर हम लोग कुछ और एग्जांपल करेंगे। तो चलिए कुछ और डिस्कशन करते हैं। फिर से देखिए, एक पुली, 2 ब्लॉक एक ही धागे से बंधा हुआ। तो यह तो नहीं कह सकते कि एटवुड मशीन है, लेकिन ये भी एटवुड मशीन जैसा ही है। mg बनाइए, इसका वेट 50 न्यूटन देखिए नीचे लगेगा, इसका भी वेट 50 ही न्यूटन नीचे लगेगा। लेकिन यह वेट इस ब्लॉक को इधर नहीं चला सकता। ये ब्लॉक क्या ऐसा थोड़ी हो सकता है वेज को फार करके इससे चला जाएगा? नहीं, ये ब्लॉक नीचे नहीं जा सकता। इस ब्लॉक का इधर की तरफ कंपोनेंट कितना होगा? mg sin थीटा। कोई भी ब्लॉक अगर इंक्लाइंड प्लेन पे रखा हुआ है, तो ये हम लोग पहले भी डिस्कस किए हैं, पहले मैंने बार बार निकाल करके आपको दिखाया था। अब आप लोग को याद रखना ये कि कोई भी ब्लॉक है उसका वेट mg नीचे लगता है। इस mg का along द इंक्लिनेशन कंपोनेंट होता है mg sin थीटा, sin 37। अब ये मत बोलना कि सर इधर की तरफ साइन कैसे होता है, इधर एंगल है तो इधर कॉस ना होगा। अरे भैया, यहाँ का एंगल देखते हैं, mg ऐसे है, फिर से बता दे रहा हूँ, देखो ये 90, ये थीटा, ये 90, ये 90 - थीटा है, तो mg cos 90 - थीटा, इसलिए sin थीटा होता है। अब आगे से याद रखिएगा, along द इंक्लिनेशन mg sin थीटा होता है, इधर की तरफ mg cos थीटा होता है, थीटा ये वाला एंगल। mg 50, sin 37 3/5, तो ये हो गया 30 न्यूटन। ये 30 न्यूटन इस ब्लॉक को चला सकता है। अब देखिए, इस ब्लॉक को चलाने के लिए इधर फोर्स लग रहा है 30, इधर लग रहा है 50, तो ऑब्वियस बात ये इधर जाएगा, ये वाला ब्लॉक नीचे जाएगा A से, और ये वाला ब्लॉक अप द इंक्लिनेशन मूव करेगा A से। A निकाल सकते हैं हम लोग। ये फोर्स सपोर्टिंग क्योंकि एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में है, ये फोर्स अपोजिंग क्योंकि एक्सेलरेशन के अपोजिट है। 50 - 30 20 बाय टोटल मास 5 + 5 10। एक्सेलरेशन कितना हो गया? 2 मीटर/सेकंड²। अगर कोई आपसे टेंशन पूछ दे तो इस धागे में टेंशन T, ये ब्लॉक अप द इंक्लिनेशन मूव कर रहा है, दूसरे की तरफ इक्वेशन लिखिए, ये लिखेंगे T माइनस इधर वाला फोर्स 30, ये हो गया फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन 5a, a है 2, तो T इज इक्वल्स टू 40 न्यूटन। ठीक है, इधर चलिए, फिर से मैंने आपको एक वेज दिया है, ये 53, ये 37 डिग्री एंगल दिया है, तो ऑब्वियस बात है ये एंगल 90 होगा। 2 ब्लॉक 5 kg का है, लेकिन इस बार ये सिस्टम मूव करेगा क्योंकि अलग अलग एंगल होने से mg का जो कंपोनेंट होगा वो अलग अलग हो जाएगा। यहाँ देखिए क्या होगा, 50 ऐसे लगेगा वेट mg 50, उसका इधर की तरफ कंपोनेंट क्या लिखेंगे 50
साइन 37 3/5 होता है, तो 50 इंटू 3/5 30 न्यूटन होगा। और यहाँ पे यही कितना हो जाएगा 40 न्यूटन। इस बार ये ज्यादा है, ये कम है, इसलिए ये ब्लॉक इधर जाएगा ए से और ये ब्लॉक ऊपर मूव करेगा ए से। ए कितना लिखेंगे, ये फोर्स सपोर्टिंग, क्योंकि एक्सलेशन के डायरेक्शन में ये फोर्स है इसलिए सपोर्टिंग कहेंगे। 40 माइनस 30 क्योंकि ये अपोजिट है, बाय टोटल मास 5 + 5 10, तो 40 माइनस 30 10 होता है, 10/10 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। टेंशन, इस धागे में टेंशन T मान लीजिए ऐसे। ये ब्लॉक ऊपर मूव कर रहा है, तो क्या लिखेंगे इक्वेशन T माइनस 30 इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलेरेशन 5a, 5 हो जाएगा, T इज इक्वल्स टू 35 न्यूटन। इसके लिए चलिए, इसके लिए एफबीडी बनाइए। इसका वेट 20 न्यूटन यहाँ नीचे, इसका वेट 50 न्यूटन नीचे रहेगा। इधर की तरफ कंपाउंड कितना दिखाएंगे 50 साइन 30, साइन 30 1/2 होता है, तो ये हो जाएगा 25 न्यूटन और इसका वेट 30 न्यूटन। तो इस सिस्टम को इधर चलाने वाला फोर्स कितना है 20 + 25, ये भी तो इधर इसको खींचेगा ना, तो 25 + 20 मतलब 45 न्यूटन इस सिस्टम को इधर चलाना चाहता है। और इधर चलाने वाला कितना है 30, और इस बात इधर वाला ज्यादा है, इसलिए ये ब्लॉक ए से नीचे जाएगा। ये दोनों ब्लॉक सेम धागा से कनेक्टेड है, इसलिए जितना ही ब्लॉक नीचे जाएगा उतना ही ये ब्लॉक इधर जाएगा। ये दोनों भी सेम धागा से कनेक्टेड है, तो जितना ही ब्लॉक इधर जाएगा उतना ही ब्लॉक ऊपर जाएगा। तब ये तो नहीं कह सकते कि एटवुड मशीन है, लेकिन ये एटवुड मशीन जैसा ही है, सारे ब्लॉक का एक्सेलरेशन सेम है। एटवुड मशीन मतलब सारे ब्लॉक का एक्सेलरेशन सेम होना चाहिए, तब उसमें सीधा सीधा सपोर्टिंग फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स करके आप आंसर निकाल सकते हैं। अगर सारे ब्लॉक का एक्सेलरेशन सेम नहीं हुआ, जो कि अगले क्लास में हम लोग करेंगे, तो वहां पे हम लोग पहले तो एक्सेलरेशन सेम नहीं कब होता है वो देखेंगे, उन एक्सेलरेशंस में क्या रिलेशन होता है अगर सेम नहीं है तो वो देखेंगे, उसको कंस्ट्रेंट रिलेशन कहते हैं। और फिर हम लोग इक्वेशन लिख करके ही सॉल्व कर सकते हैं, वो हम लोग आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे। इसमें ए निकाल लीजिए, ए कितना हो जाएगा, ये फोर्स सपोर्टिंग है तो 20 + 25, ये भी सपोर्टिंग है, सेम डायरेक्शन में है, तो 45 माइनस ये अपोजिंग है क्योंकि एक्सेलरेशन के अपोजिट है 30, बाय टोटल मास 5 3 8 2 10, ये हो जाएगा 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हो गया एक्सेलरेशन। टेंशन निकालने को कोई कहे तो यहाँ टेंशन आप T1 मान लीजिए। इस ब्लॉक के लिए इक्वेशन लिखिए, ये ब्लॉक नीचे जा रहा है, क्या इक्वेशन लिखेंगे 20 माइनस T1 इज इक्वल्स टू 2 × A, तो 2 × 1.5 3 हो जाएगा, तो T1 हो जाएगा 17 न्यूटन। सिमिलरली इस ब्लॉक के लिए इक्वेशन लिखिए, ये हो गया मान लीजिए T2, ये ब्लॉक ऊपर जा रहा है, क्या इक्वेशन लिखेंगे T2 माइनस 30 इज इक्वल्स टू 3A मतलब 4.5, तो T2 हो जाएगा 34.5 न्यूटन। फिर से आप चाहे तो इस ब्लॉक के लिए भी इक्वेशन लिख के टेंशन निकाल सकते हैं, लेकिन फिर से वही बात, ये सेम धागा है ना, तो यहाँ टेंशन T2 ऐसे लगेगा और यहाँ टेंशन T1 ऐसे लगेगा। दोनों दो अननोन है, एक ही कोई अननोन होगा तो निकाल सकते हैं, मतलब एक तो आप पहले से किसी से निकालना पड़ेगा। तो मान लीजिए हम लोग T1 निकाल चुके हैं, T1 की वैल्यू हम लोग को पता है 17 न्यूटन, ये निकाल चुके थे, उसको रख दिए। अब आप T2 निकाल सकते हैं। इस ब्लॉक के लिए इक्वेशन लिखिए, ये ब्लॉक इधर जा रहा है, इधर की तरफ कितना फोर्स है 25 + 17 मतलब 42 माइनस ये T2 इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन 5 × A, तो 5 × 1.5 7.5, तो T2 हो जाएगा, इसको इधर भेज दे, इसको इधर 42 माइनस 7 35 में से भी 0.5 तो 34.5, ठीक है, सेम आंसर आ गया। सो इन दिस वे वी कैन सॉल्व द क्वेश्चंस रिलेटेड टू एटवुड मशीन, और वह जो एटवुड मशीन तो नहीं है लेकिन उसी के जैसा है। और कैसे पता करते हैं उसी के जैसा है, सारे ब्लॉक का एक्सेलरेशन अगर सेम हो तो। In that case we can directly use the trick that acceleration is equals to supporting force minus opposing force by total mass. And with the help of this concept you can solve most of the questions of HCV, and it's your homework to solve these questions 24, 25, 26, 27, 30, 35, 36, 37, 39। जो क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया है इसका मतलब उसमें एक नया कॉन्सेप्ट है जो कि हम लोग अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तो अगली क्लास में पहले ये इसके डाउट डिस्कस करेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, राइट।
So this completes our today's discussion. Thank you for being with us. Have a great day.